سپریم کورٹ نے مبینہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے 3 ججز پر حکومتی اعتراض کی درخواست مسترد کر دی۔ فیصلے میں قرار دیا کہ حکومتی درخواست بینچ کو ہراساں کرنے کے لیے دائر کی گئی ہے۔ اعتراض کا مقصد چیف جسٹس کو بینچ سے الگ کرنا تھا۔ یہ درخواست عدلیہ پر حملہ ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے 3 ججز پر حکومتی اعتراض کی درخواست مسترد۔ ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات عدلیہ پر حملہ قرار۔ سپریم کورٹ نے 32 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دی۔ تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 3 ججز پر اعتراضات کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ بینچ پر اعتراض کی درخواست اچھی نیت کی بجائے بینچ کے اراکین کو ہراساں کرنے کے لیے دائر کی گئی۔ وفاقی حکومت نے مختلف چالوں اور حربوں سے عدالتی فیصلوں میں تاخیر کی اور عدالت کی بے توقیری کی گئی۔ فیصلے کے مطابق عدالت کی بے توقیری کا سلسلہ 1 مارچ 2023 سے شروع کیا گیا، جب یہ کہا گیا کہ 4-3 کی اکثریت سے اسپیکر کی درخواست مسترد کی گئی۔ وفاقی حکومت 4 اپریل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کا مقصد اپنی بے عملی کو جواز دینا تھا۔ اس کے بعد پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر قانون منظور کیا۔ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر قانون کو سپریم کورٹ غیر آئینی قرار دے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے متعدد آئینی مقدمات سے ججز کو الگ کرنے کے لیے درخواستیں دائر کی۔ آڈیو لیکس کمیشن میں بھی ایسی ہی مفادات کا ٹکراؤ اور تعصب جیسی بے سر و پا بنیادوں پر درخواست دائر کی گئی۔ آڈیو لیکس کیس کے خلاف اعتراضات کی درخواست دائر کرنے کا مقصد چیف جسٹس پاکستان کو بینچ سے الگ کرنا تھا۔ وفاقی وزراء نے مختلف مقدمات سننے والے ججز کے خلاف بیان بازی کی۔ وفاقی وزراء نے عوامی فورمز پر اشتعال انگیز بیانات دیے۔ وزراء کا اشتعال انگیز بیانات کا مقصد وفاقی حکومت کے ایجنڈے کو تقویت دینا تھا۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کے ان مقدمات کو انتہائی تحمل اور صبر سے برداشت کیا۔ کسی عدالتی فیصلے پر حتمی عدالتی فیصلے کی پابندی لازم ہے۔ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر آئین میں نتائج دیے گئے ہیں۔ بینچ کے ججز پر اعتراض کے لیے متفرق درخواست مذموم مقاصد کے لیے دائر کی گئی۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے، ہماری پارٹی کے مطابق انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے۔ ہم الیکشن کمیشن سے اپیل کرتے رہیں گے کہ الیکشن کی تاریخ اور شیڈول کا اعلان کیا جائے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا، جس کا مقصد مخالفین کو جیل میں ڈالنا تھا وہ آج خود جیل میں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ الیکشنز جلد از جلد کروایا جائے، الیکشنز آئین کے مطابق کروایا جائے، الیکشنز 90 دن میں ہوں تاکہ ہم وہ الیکشنز جیت کے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکیں، پاکستان کا عوام کو ان مشکل معاشی صورتحال سے نکال سکیں۔ صدر زرداری کا اس ملک میں سیاسی قیدیوں میں سے سب سے زیادہ اس کا وہ قید رہا ہے۔ 11.5 سال صدر زرداری نے جیل میں گزارا ہے سزا کے بغیر، اور آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جن سیاستدانوں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے ان کو بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو ان کو ہم پیغام دلانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم حوصلہ دلوانا چاہ رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی نے معاشی و انتظامی چیلنجز سے نمٹنے اور ملکی معیشت کی ترقی کے لیے روڈ میپ وضع کر لیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں، قلیل مدت کے لیے حکومت ملنے کے باوجود معاشی بحالی کے منصوبے پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا 5واں اجلاس۔ آرمی چیف، نگران وفاقی وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ معاشی ترقی کے لیے اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ اجلاس میں معاشی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے قلیل مدتی، وسط مدتی اور طویل مدتی منصوبہ بندی پر مشاورت ہوئی۔ شرکاء کو مقامی اور بیرونی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کے سدباب کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ ریگولیشن کو مؤثر اور تیز تر بنانے کے جامع پلان پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم انوار الحق نے اپنی کابینہ پر زور دیا، SIFC کے تحت اقدامات پر معینہ مدت میں عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ نگران وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا، ان اقدامات کے نفاذ سے آئندہ منتخب حکومت کو بھی معیشت کی بحالی کے پروگرام پر عمل درآمد میں آسانی ہوگی۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا اجلاس، نگران وفاقی وزراء کے اجلاس کے حوالے سے میڈیا بریفنگ۔ بتایا کہ ایپیکس کمیٹی نے اب تک کے اقدامات پر اظہار اطمینان کیا۔ SIFC کی ایپیکس کمیٹی اجلاس کا دوسرا دور آج ہوگا۔
फैसलों के हवाले से मीडिया को आगाह करेंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। डॉलर, चीनी और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त होगा। नुकसानदेह बैनुल-अक़वामी माहिरों का जायजा लिया जाएगा। निगरान वफाकी वज़रा मुर्तज़ा सोलंकी, शमशाद अख्तर, गौहर एजाज और मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इजलास से मुतालिक तफसीलात शेयर की। हुकूमत के जो अखराजात हैं उनको कम करना, गर्दिशी कर्ज़ों को कम करना, निजकारी के हवाले से जो पहले से फैसले हो चुके हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से एक क्लियर कैलेंडर उस पर काम करना, उसमें FBR के अंदर उसकी रिस्ट्रक्चरिंग और इस्लाहात, गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से जो रुकावटें हैं, जो रोड ब्लॉक्स हैं वो हटाना, जिनमें वीज़ा पॉलिसी वगैरह वो भी शामिल है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने कहा, हम सब मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए मुखलिसाना कोशिश कर रहे हैं। मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आर मेकिंग अ वेरी सिंसियर एफर्ट कि हम अपना रोड मैप डिफाइन करें फॉर ऑगमेंटिंग रियली द मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट इन द कंट्री। हम चाहते हैं किसी तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए और उसके लिए हम काम शुरू कर रहे हैं टू डिफाइन द स्टेप्स टू जंप स्टार्ट द इकोनॉमी। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि मुल्क की कंट्रोल मईशत को खोलने का फैसला किया है। तिजारत बढ़ाएंगे, मुआशी तरक्की के लिए सनतों का फ़रोग़ ज़रूरी है। इंडस्ट्री को जो है हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ताकि मुल्क का पहिया चले। अगर सनत चलेगी तो मुल्क का पहिया चलेगा और सनत चलेगी तो हमारे मुल्क का कारोबार बढ़ेगा। महंगाई का भी बहरान इसी तरह कंट्रोल होगा जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ये जो आज 300 का डॉलर है, ये 300 का डॉलर 250 का भी हो सकता है अगर मुल्क की एक्सपोर्ट की सनत चल पड़े। वज़ीर तवानाई ने कहा, गैस की कीमतों को रिवाइज और नुकसानात को कम, जबकि बिजली चोरी पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दें। बिजली बिल्स पर सारिफीन को रिलीफ देने से मुतालिक IMF से बातचीत आखिरी मराहिल में है। IMF को भेजा हुआ है और उसके अंदर हमें उम्मीद थी कि कल तक इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा यस्टरडे, लेकिन वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में है और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह वीकेंड या मैक्सिमम मंडे तक इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। वफाकी वज़रा ने मजीद कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम पर काम किया जा रहा है। मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम करना होंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों की राह में हाल रुकावटों को दूर करने के लिए भी इक़दाम नागुज़ीर हैं। आपको बताएं, निगरान हुकूमत की जानिब से अमरीकी डॉलर, चीनी खाद और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकथाम के लिए बड़ा कदम। स्मगलिंग का खात्मा यकीनी बनाने के लिए गैर मुल्की करेंसी के तमाम एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पर FIA कार्रवाई कर सकेगी। तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में देखते हैं। स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को इख्तियारात फराहम किए गए हैं। वज़ीर दाखिला की सदारत में होने वाले इजलास के बाद FIA को कार्रवाइयों के अहकाम जारी किए गए। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की जानिब से मरासला जारी किया गया, जिसमें FIA के तमाम जोनल डायरेक्टर्स रोजाना की बुनियाद पर सुबह 10 बजे रिपोर्ट भेजेंगे। मरासले के मुताबिक अमरीकी डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसी की तमाम एग्जैक्ट और एंट्री पॉइंट्स पर FIA कार्रवाई कर सकेगी। दूसरी जानिब तमाम जोनल डायरेक्टर्स को रोजाना की बुनियाद पर मुताल्लिका फॉर्म के जरिए तफसीलात हेडक्वार्टर्स फराहम करने का हुक्म दिया गया है। FIA के तमाम जोनल डायरेक्टर्स को भी एक फोकल पर्सन मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी रहा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये और ओपन मार्केट में 3 रुपये सस्ता हो गया। सोने की कीमत में भी बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। फॉरेक्स मार्केट में क्रैकडाउन के असरात आज भी देखे गए। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर इंटरबैंक में बुलंद तरीन सतह से 4 रुपए 15 पैसे कम हो चुका है। आज ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए की कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 305 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। हालिया हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 28 रुपए सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कदर का फर्क 0.7% की सतह पर आ गया है। हफ्ते के आगाज पर ओपन मार्केट और इंटरबैंक में यह फर्क 8.2% की सतह पर था। कारोबारी तबके को उम्मीद है कि डॉलर की कदर में कमी से महंगाई में कमी होगी। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल जो हैं वो सारे सस्ते होने शुरू हो गए। आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि एक हफ्ते के दौरान घी की कीमतों में तकरीबन 30 रुपये किलो कमी हो चुकी है और उसी तरीके से ही केमिकल्स और जो दूसरी चीज़ें हैं जो इंपोर्ट ओरिएंटेड हैं उनकी कीमतें नीचे आ रही हैं और इन्फ्लेशन जो है ऑटोमेटिकली वो कम होगी। हम ये तवक्को रखते हैं और यकीन के साथ कि ये कांस्टेंट ये रहेगा और आप देखिएगा बड़ा ड्रास्टिकली जब डॉलर नीचे गिरेगा तो महंगाई ऑटोमेटिकली नीचे आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं।
तो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी और मुझे इनकी नीयत भी नज़र आती है। सोना आज फिर सस्ता हो गया। फी तोला सोना 4,000 रुपए कमी से 2,12,500 रुपए और 10 ग्राम सोना 3,430 रुपए कमी से 1,82,184 रुपए का हो गया है। स्टॉक मार्केट में आज भी मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 256 पॉइंट्स इजाफे से 40,013 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आगे बढ़ आपको बताएं, महंगी बिजली मजीद महंगी, कीमतों में ₹1.46 फी यूनिट इजाफा। कीमतों में इजाफा जुलाई की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महंगी बिजली मजीद महंगी, कीमतों में ₹1.46 फी यूनिट इजाफा। कीमतों में इजाफा जुलाई की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महंगी बिजली मजीद महंगी, कीमतों में ₹1.46 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन में तेज़ी आ गई। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के अपने अपने इलाकों में क्रैकडाउन, मुतादिद बिजली चोरों को धर लिया गया। दर्जनों मुकदमात दर्ज, बकाया जात की मद में लाखों रुपए की रिकवरी कर ली। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। इस्लामाबाद में मुतादिद बिजली चोरों को धर लिया गया। लेस्को इंतजामिया ने 2 रोज के दौरान 528 बिजली चोरों को पकड़ कर कार्रवाई की। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 222 बिजली चोरों को पकड़ा गया। बिजली चोरी में मुलविस मुलजिमान को 1,97,00,000 रुपए के जुर्माने किए गए। कसूर में 269, शेखुपुरा से 200, लियाकतपुर से 36 बिजली चोरों को हिरासत में लिया गया। गुजरांवाला और लकी मरवत से बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। लाड़काना और कंबर में 1000 से ज्यादा बिजली के गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता किए गए। हेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुआ। टीमों ने 3,800 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता करके नादहिंदगान से 2,72,35,000 रुपए की वसूली की। बिजली चोरी में मुलविस 40 अफराद के खिलाफ मुकदमात के लिए मुतल्लिका थानों में दरख्वास्तें दे दी गई। रायविंड में ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरों ने लेस्को हुकाम पर धावा बोल दिया। 150 से ज्यादा अफराद ने लेस्को हुकाम पर तशद्दुद किया, जबकि दफ्तर में तोड़ फोड़ भी की। लेस्को हुकाम ने हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुल्क में चीनी का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। तारीख में पहली बार 1 किलो चीनी की कीमत डबल सेंचुरी अबूर कर गई। एक हफ्ते में फी किलो कीमत में 25 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हफ्तावार महंगाई भी 0.96% बढ़ गई। सालाना शरह 26.32% पर जा पहुंची। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सरकार का 1 किलो चीनी 200 रुपए तक पहुंचने का एतराफ। एक हफ्ते में फी किलो कीमत में 25 रुपए का बड़ा जंप। हफ्तावार महंगाई में भी 0.96% इजाफा। सालाना शरह 26.32% तक पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक पेशावर और कोयटा में फी किलो चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। रावलपिंडी और कराची में 195, इस्लामाबाद में 190 रुपए की मिलने लगी। हालिया हफ्ते के दौरान पेशावर में चीनी की कीमत 25, रावलपिंडी 20, इस्लामाबाद, कराची 15 और कोयटा में 10 रुपए बढ़ी। इदारे शुमारियात के मुताबिक खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 32 अशिया जरूरिया के दाम बढ़ गए। टमाटर 15, दाल मसूर 32, लहसुन 20, दाल मूंग 9 रुपए 73 पैसे, प्याज 3 और गुड़ की कीमत 8 रुपए फी किलो बढ़ गई। ताज़ा दूध, आलू, अंडे, दही और केले के निर्ख भी बढ़ गए। अदालती खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की जमानत की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चौधरी परवेज इलाही जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। प्रोसिक्यूटर की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा मुस्तरद। अदालत ने साबिक वजीर आला पंजाब को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को 11 सितम्बर के लिए नोटिस दौरान समाअत परवेज इलाही के वकला ने उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तेदा की, जबकि प्रोसिक्यूटर ने चौधरी परवेज इलाही के मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा की। मौक़िफ़ अपनाया कि परवेज इलाही ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले के लिए गाड़ियां और माली माउनत फराहम की, जिस पर तफ्तीश करनी है। वकला की जानिब से परवेज इलाही की जेल में फैमिली से मुलाकात और घर के खाने की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। परवेज इलाही रोस्ट्रम पर आए और मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब की कोई जेल रह नहीं गई जहां मुझे भेजाना आ गया हो। मुझे दिल के स्टंट्स भी पड़े हैं। निगरान वज़ीर आला मेरा रिश्तेदार है लेकिन सख्त मुखालिफ है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। दूसरी जानिब 9 मई को जलाओ घेरा का मामला, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग।
इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से 22 रहनुमाओं की जायदादें और बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम जब्त करने की इजाज़त मांग ली। मुजाहिद शेख की रिपोर्ट देखते हैं। सानिया 9 मई पीटीआई रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग। इश्तिहारी करार दिए जाने वाले पीटीआई रहनुमाओं की जायदादें और बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकूम जब्त करने की इजाजत मांग ली गई। जेआईटी के सरबराह और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने खत लिख दिया। खत की कापी दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। खत के मतन के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से पीटीआई के 22 रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने की इजाजत मांगी गई है। जेआईटी के सरबराह ने एफबीआर, कमिश्नर लाहौर और स्टेट बैंक से मुलजमान की जायदादों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मांगी हैं। अदालत से इस्तदा की गई है कि तमाम इश्तिहारी मुलजमान पर आर्टिकल 88 की कार्रवाई करते हुए जायदादें और पैसा जब्त करने की इजाजत दी जाए। मुलजमान में चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान और उज़मा खान समेत दीगर शामिल हैं। खत के मतन के मुताबिक तमाम मुलजमान को 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने पर तफ्तीशी टीम की जानिब से इश्तिहारी करार दिया गया है।